جب سے کہ میں ہوں شہر علم، خود نبی فرماتے تھے جب سے کہ میں ہوں شہر علم، کون ہے در کے سوا اس کا نہیں در دوسرا۔ اور نہ سب در دوسرا، گر علی پیدا نہ ہوتے احمد مختار کے، گر علی پیدا نہ ہوتے احمد مختار کے، فاطمہ کے واسطے ملتا نہ شوہر دوسرا، حیدری کوئی علی سا اور نہ صفدر دوسرا، بھاگنا ہی بھاگنا سیکھا نہیں فن دوسرا، بھاگنا ہی بھاگنا سیکھا نہیں فن دوسرا، بھاگنے میں لے گیا پہلے سے نمبر دوسرا، حیدری کوئی علی سا اور نہ صفدر دوسرا، بات کر میدان میں لاشیں بولے عباس سے جری، بات کر میدان میں لاشیں بولے عباس سے جری، دوڑتے ہم بھی جو ہوتا باب خیبر دوسرا، حیدری کوئی علی سا اور نہ صفدر دوسرا، شیخ صد کے ہوتے ہی بس مل گئی جنت کی راہ، شیخ صد کے ہوتے ہی بس مل گئی جنت کی راہ، قربیا اپنے وقت کا نکلا سکندر دوسرا، حیدری کوئی علی سا۔ ایک سلام۔ حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب
جس کی محفل میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا ولادت شاہ مردہ کا ذکر کعبے میں ولادت شاہ مردہ کا ذکر کعبے میں جو در سے پوچھو تو دیوار سے لاش میں زہرا میرے حسین وہ کالی لاش میں زہرا میرے اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین نشا گلے پہ گریباں کا شک تھا مجھ کو نشا گلے پہ گریباں کا شک تھا مجھ کو گلا وہ تیر سے کاٹا میرے حسین بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر جا کے
हजार सरबरहना बदर दो अला रोते सरों को पीटे पाबंद ज़ैनब ने लाश से मरने से आपके मैं इज़ा उठाती हूँ दरबार में यज़ीद के सर नंगे जा दरबार में यज़ीद के सर नंगे जाती हूँ हाय हाय मेरे मुसाफिरे करबो बला जला के ऐले सितम शाह
ہمیں دنیا کے سمندر سے نکالو، کہ دل کو ہمیں دنیا کے سمندر سے نکالو، یہ ہنر سے شام کے لشکر سے نکالو، دل کو ہمیں دنیا کے سمندر سے نکالو، یہ ہنر سے شام کے لشکر سے نکالو، اور اسلام پہ الزام تھا تلوار سے پھیلا، خنجر پہ کہوار اثر سے نکالو، اسلام پہ الزام تھا تلوار سے پھیلا، خنجر کوئی گہوارے اصغر سے نکالو۔ اور چاند سے دیکھیں گے کہ یزید والے کے چہرے خراب ہوتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، یزید والے کے چہرے خراب ہوتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، اور حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلام یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلام یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمر کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمر کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ لیا۔ ایک مطلب اور دو شعر دیکھیے گا، اس لائق کو تو بہت سنا دیجیے گا کہ چھوڑ سکتی ہی نہیں، چھوڑ سکتی ہی نہیں کرب و بلا دست ندیر، دست کہتے ہیں آپ کو، کہ چھوڑ سکتی ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب چھوڑ سکتی ہی نہیں کرب و بلا دست ندیر، تعزیہ ہوگا جہاں پر وہیں ممبر ہوگا، تعزیہ ہوگا جہاں پر وہیں ممبر ہوگا، آ رہے ہیں در زندہ سے نکل کر مختار، آ رہے ہیں در زندہ سے نکل کر مختار، کربلا تیرا حساب آج برابر ہوگا، کربلا تیرا حساب آج برابر ہوگا، اور نظر اس دن میں دلاؤں گا علی اکبر کی۔ ایک باپ جب اس کا بیٹا ماتم کرتا ہے اور آزادار ہو جاتا ہے تو باپ کے دل پر کیا بیتی ہے اور کیا وہ فیل کرتا ہے، اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، تو اس شعر کے اندر سے رقم کیا ہے شاعر نے، دیکھے گا کہ نظر اس دن میں دلاؤں گا علی اکبر کی، نظر اس دن میں دلاؤں گا علی اکبر کی، جب میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہوگا، جب میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہوگا۔ یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا، یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا، حسین کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، اور یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ آئیے ان دوسروں کے ذریعے سے بڑی توجہ کے ساتھ ملتمس والی جناب مولانا اقرار مشن صاحب کے خدمت میں کے ذریعے ممبر ہو، ان کے اختیار بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، ایک اس سے بہتر جیتی جاگتی صلوات پڑھے بر محمد. حضرات محترم، بزرگان ایمان اور میری قوم و ملت کا بہترین مستقبل، آج کی گفتگو کے لیے، عبادت کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنی عظیم لا ریب بے عیب طاہر کتاب میں. وہ کتاب جو عظمتوں والی کتاب ہے، نعمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، شرافتوں والی کتاب ہے، کرامتوں والی کتاب ہے، اور اللہ کی اتنی معتبر ترین کتاب ہے کہ اگر جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آ جائے. جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آ جائے. صلوات پڑھ دے پر محمد. امت مسلمان کو اور انسان کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہے. اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر نجاست کو دور رکھا جائے اور آپ کو ایسے ہی پاک و پاکیزہ رکھا جائے جیسے رکھنے کا حق ہے. اب یہ قرآن ہے 6666 آیتیں، 114 سورے. ہر سورہ، ہر آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کا شان نزول بھی موجود ہے. یعنی یہ آیت کب آئی، کیوں آئی، اس کے پیچھے کا سبب، علت، ریزن، یعنی ہر آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کا شان نزول بھی موجود ہے. مثال کے طور پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یعنی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ہر آیت کا شان نزول موجود ہے. تو پھر اس آیت کا بھی شان نزول ہوگا. تو ہم نے جب پڑھا تو ہمیں یہ ملا کہ جب کائنات کے رسول پر، طٰہٰ پر، یاسین پر، مزمل پر، مدثر پر، جان کائنات پر، شان کائنات پر، خلق اول پر، کمال اول پر، جمال اول پر، لسان اول پر وحی آئی اور آپ ایک کوہ صفا پہاڑ پر گئے اور اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اس کی وحدانیت کا اعلان کرا کہ وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا میسنجر توجہ ہے. یعنی ہر آیت کا شان نزول موجود ہے. تو اس بھیڑ میں قریش کی ابو لہب بھی موجود تھا. جیسے نے اس منظر کو دیکھا اس میں چہرے سے میں کہا کہ دیکھو محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو پروردگار نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب، میرے محمد کے نہیں، میرے محمد کے نہیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو مسلمانوں فیصلہ کرنا، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، آغا خانی ہو، قادیانی ہو، داؤدی ہو، احمدی ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، جو محمد کا سگا چچا ہو کر، ایک خاندان ہو کر، ایک شجاع ہو کر محمد کو کچھ کہے، پروردگار اس کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. اس کا کیا کیجیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کو ہزیان ہو گیا. اس کا شان نزول موجود ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے مومنین. ہمیشہ یہ سوال نہیں ہوتا کہ کتنے مومنین، سوال یہ ہوتا ہے کیسے مومنین. اور ایک جملہ آگے بڑھ کر کہہ دو، اسلام کے اندر کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. میرے والد محترم کہا کرتے ہیں اسلام کے اندر کوالٹی ہے
क्वांटिटी नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर क्वांटिटी होती तो फिर चादर तफसीर में और भी आ जाते, मैदान मुबारका में और भी आ जाते, करबला में और भी आ जाते। तो हर आयत जो कुरान के अंदर मौजूद है उसका शान नुज़ूल मौजूद है। अब मैंने आपके सामने तिलावत करा आयत तत्हीर को, आयत तत्हीर का शान नुज़ूल है हदीस किसा, तवज्जो है कि मैं आयत गुफ्तगू कर रहा हूं, है आयत तत्हीर का शान नुज़ूल है हदीस किसा। ये हदीस किसा क्या है? कायनात के रसूल ने अपने बदन अजीम में ज़ौफ़ महसूस किया, नकाहत महसूस करी, थकन महसूस करी, फिर क्या किया? आप अपनी बेटी, माफ कीजिएगा लफ्जों को बदलूं, एक लौटी बेटी फातिमा के दरवाजे पर गए, फातिमा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, नकाहत महसूस कर रहा हूं। तो या नबी अल्लाह ताला तरीका कार तो ये है, किसी हकीम, तबीब, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट को दिखाइए कि फातिमा के दरवाजे पर जाकर चादर क्यों मांग रहे हो, फातिमा के दरवाजे पर जाकर चादर क्यों मांग रहे हो? मगर रसूल के बदन में हुआ ज़ौफ़, मांगी चादर, मिली चादर। फातिमा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, फातिमा मैं अपने बदन में नकाहत महसूस कर रहा हूँ, मुझे एक चादर दे दो, एक गुजरा बता दो। आज रसूल ने अज़मते चादर खानवादे अहले बैत समझा दिया, आज रसूल ने अज़मते चादर अहले बैत समझा दी कि अगर बदन रिसालत में ज़ौफ़ होता है तो फातिमा चादर देती है, बदन इस्लाम में ज़ौफ़ होता है तो ज़ैनब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बदन में हुआ ज़ौफ़, मांगी चादर, मिली चादर। अब चादर लेने के बाद नबी अल्लाह गुजरे में चले, वाक़या आपकी नजरों के सामने। अब तारीख बताती है इमाम हसन तशरीफ लाए। अम्मा आप पर हमारा सलाम होगा, हम अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं, खुशबू। इमाम हुसैन आए, अम्मा आप पर हमारा सलाम हो, अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहे, जाओ मेरे लाल वाले चादर के अंदर हुजरे में आराम कर रहे हैं। मौला अली आए, बिन्त रसूल आप पर हमारा सलाम हो, हम अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहे हैं। अच्छा सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, मगर मुसलसल इस बात को कॉन्टिन्यूस तौर पर रिपीट कर रहे हैं, क्या खुशबू महसूस कर रहे हैं। तवज्जो दी आपने, खुशबू महसूस कर रहे हैं, खुशबू महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है बदन नबी में कोई मखसूस खुशबू थी, बदन नबी में कोई मखसूस खुशबू थी। इमाम हुसैन आए, खुशबू महसूस कर रहे हैं, इमाम हसन आए, खुशबू महसूस कर रहे हैं, मौला कायनात आए, खुशबू महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है बदन नबी में कोई मखसूस खुशबू थी। इसका मतलब ये है कल जो शब हिजरत सो रहा था उसके बदन में भी यही खुशबू थी, उसके बदन में भी यही खुशबू थी, वरना ये बदबूदार लोग पहचान जाते। खुशबू महसूस करी, जाओ हो जाओ। अच्छा सब आ गए। अब तारीख कहती है एक बीवी दबे दबे कदमों से आगे बढ़ी, और ऐसे वैसे नहीं, पहले अजमत समझाऊंगा फिर जुमला आप तक पहुंचाऊंगा। तारीख ने नाम बताया उम्मे सलमा, देखिएगा मेरे से, उम्मे सलमा दबे दबे कदमों से आगे बढ़ी। या रसूल अल्लाह क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी चादर में आ जाऊं? हाय हाय, या रसूल अल्लाह क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी चादर में आ जाऊं? अब कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौलिक, कोई फतवा, कोई खुतबा, कोई हदीस ऐसा लाकर के दिखाओ कि जैसी जनाबे उम्मे सलमा ने कहा कि मुझे भी इजाजत है, तो रसूल अल्लाह ने कहा आ जाओ, आप भी आ जाओ। मगर क्या कहा? उम्मे सलमा खबरदार, तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। अम्मा जिसे खैरुल बशर खैर की सनद दे दे, उम्मे सलमा जागो जागो मेरे अजीज, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो, तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो। अम्मा जब खैर वाली बीवी अहले बैत में ना आ सकी तो फिर शर वाली
आवाज आई, या रब्बे वमन तातल किसा, बांधने वाले बता चादर के अंदर कौन? अच्छा, सवाल करने वाले बता चुका, कौन है सवाल करने वाला? जिब्राइल। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे इस मंजिल पर आने के बाद कि ए जिब्राइल, क्या तुमको पता नहीं है कि चादर के अंदर कौन? ए जिब्राइल, गाजरों में गुड़िया ना मिलाओ, क्या तुमको पता नहीं है चादर के अंदर कौन? कभी चक्की चलाने आए, कभी झूला झुलाने आए, कभी झाड़ू लगाने आए, क्या तुमको पता नहीं है? लेकिन जुमला आ रहा है, इंशाअल्लाह मजलिस को मजलिस बना देगा। शरफ पे वमन तातल किसा, पालने वाले पता चादर के अंदर कौन? तो आवाज आई, फातिमा, फातिमा, फातिमा के बाबा, फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा, फातिमा के बेटे। आज अल्लाह ने, कुदरत ने इंट्रोडक्शन का तरीका बदल दिया। किबला क्या? फातिमा, फातिमा के बाबा, फातिमा, फातिमा के शौहर। बल्कि तरीका तो यह है जो खानदान में सबसे बड़ा हो उसके जरिए होता है इंट्रोडक्शन। जो खानदान में, कबीले में सबसे बड़ा हो उसके जरिए होता है इंट्रोडक्शन। फला के नवासे, फला के पोते, फला के बेटे, फला के भांजे, तो बचेगा। मगर क्या कहा? फातिमा, फातिमा के बाबा। होना चाहिए तो फातिमा है, होना चाहिए तो नबी है, नबी के दामाद है, नबी है, नबी की औलाद है, नबी है, नबी की बेटी है। मगर क्या कहा ने? फातिमा, फातिमा के बाबा, फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा, फातिमा के बेटे। आज अल्लाह ने वाया फातिमा तारुफ कराकर कयामत तक की ये मोहर लगा दी। ये अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं है, फातिमा। मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं है, फातिमा के रिश्तेदारों का नाम है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, घड़ी का तो काम है टिक टिक करना। एक जुमला और अपने वालिद मोहतरम का बचा दूं। जय श्री राम। अब पढ़ते पढ़ते एक शख्स बार बार उनकी तरफ को देखे और घड़ी को देखे, शक्ल को देखे, फिर घड़ी को देखे। तो फिल बदील जुमला कहा कि आप घड़ी को ना देखिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है टाइम बहुत जरूरी है, मगर इस घड़ी को देखकर मुझे तो बस इतना समझ में आता है, इन तीन का काम है मुसलसल 12 का तबाह करना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद ये है वो सलात मुकद्दसा, ये है वो सादिकीन, इनको फॉलो किया जाए, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये है वो सादिकीन। अब देखिए किबला, सिद्दीक में और सादिक में बहुत बड़ा फर्क है। सच्चे को कहते हैं सिद्दीक, और सादिक कहते हैं कि जो आदम को वजूद अता करते, बात पहुंचनी चाहिए, जो आदम को वजूद अता करते उसे कहते हैं सादिका। तो फातिमा सादिका है, फातिमा सादिका है। मिसाल के तौर पर आपको जुमला पहुंचा दूं, जैसे ईद के रोज जब इमाम हसन ने कहा कि अम्मा हमारे लिबास कहां पर है, जैसे कहा कि अम्मा हमारे लिबास कहां पर है, तो फातिमा है सादिका। तो कह दूं कि बेटा दर्जी के यहाँ पर है, दर्जी के यहाँ पर है। अब थे या न थे ये तो जाने खुदा, अब थे, देखिएगा, जब अब थे या न थे ये तो जाने खुदा, मगर सादिका ने कह दिए तो थे, सादिका ने कह दिए तो थे। अब आप मुझे ये बताएं नावर वालों, अब मेरे रिश्तेदार सब यहाँ पर मौजूद है, आप मुझे ये बताइए लिबास लेकर कौन आया? सबकी नजरों में सामने पूरी हिस्ट्री है, बताइए लिबास कौन लेकर आया? रिजवान, दरोगा जन्नत, रिजवान, दरोगा जन्नत, रिजवान लेकर आया लिबास। तो दर्जी तो हुआ, लिबास लेकर आया। अच्छा देखिए, इसमें भी कोई परेशानी हो जाती है। अभी मैं कहने लगूं किसी को भी, सबके रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप क्या है साहब, क्या हम जायरानी का काम करते हैं? अच्छा, आप क्या है कि हम टेलर हैं, मगर अब ये कहते हैं टेलर हूं मगर अमित शाह का, ड्राइवर हूं मगर मोदी का। अरे दरोगा जन्नत, रिजवान, दर्जी तो है मगर ये भी तो देख किसका।
टेंशन कैसी अमा जिसका नाका बनने में मोहम्मद की तौहीद। जिसका नाका बनने में मोहम्मद की तौहीद ना हुई, उसका दर्जी बनने में मेरी क्या तौहीद। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये है वो ज़वात मुक़द्दसा जिनको फॉलो किया जाए। असल में परेशानी ये होगा कि हर चीज का सवाल है और सवाल का जवाब भी है। सवाल होता है कि यही जूते चादर तस्वीर, जब अहले बैत की लिस्ट आती है तो ये भी बहुत लंबी छोटी लिस्ट है, ये भी फला भी फला भी फला भी। चादर तस्वीर का मैंने आपको बता दिया कि अली ने ही जो गवाही दी जुलशिरा के मैदान में, अना नासिर होगा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत की गवाही देता हूँ। अली ने ही जो गवाही दी। अच्छा ये बताइए महकमा कहाँ का है भाई? अगर आप गन्ने की पर्ची लेकर जाएंगे और बिजली विभाग को जमा कर देंगे जाकर, तो क्या कबूल हो जाएगी? अल्लाह का महकमा तो अल्लाह का बंदा ही गवाही देगा ना। अना नासिरों का या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपकी नुसरत की गवाही देता हूँ। अब मैं बता दूं कि अली ने ही गवाही दी, दरबार रिसालत है, छलक रहा है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब ने कहा, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबूगी के दरमियान थे। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबूगी के दरमियान थे। बार बार कह रहे हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबूगी के दरमियान थे, आबूगी के दरमियान थे। रसूलुल्लाह सुन लिया, अब छोड़िए ना, रसूलुल्लाह इंतजार कर रहे हैं, शायद आज रसूल को किसी का इंतजार है। एक मर्तबा दरवाजा खुला, अली मुस्कुराकर नमदार हुए और कहा कि मैं भी उस वक्त वली था जब आदम आबूगी के दरमियान। तो मुसलमानों अपना कहना ये अली वलीउल्लाह कहां से आया? जहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह आया, वहीं से अली वली। एक सलावत पढ़े मोहम्मद मुझे भी एहसास था और यकीनन मुझसे पास ने कई बार कहा, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही बीच में कि मैं हाजिर ना हो सका। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको आज करीम सर्व करने के लिए आप सलावत पढ़ूंगा। मैं आपकी नुसरत की गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के हबीब हैं। तो ये है वो ज़वात मुक़द्दसा जिनके लिए हदीस सकलैन है कि मैं तुम्हारे दरमियान तो कराकल चीज छोड़ जा रहा हूँ। एक किताब खुदा, दूसरे मेरे अहले बैत। अब लोग कहते हैं हमें अल्लाह की किताब का, काश अल्लाह की किताब को ही पढ़ लिया होता। सबकी बात कर रहा हूं, कुरान पढ़ने के बाद किसी की जरूरत नहीं है। पढ़िए कुरान समझ में आ जाएगा कौन है अहले बैत। जब भी मारिफत अहले बैत नहीं आएगी अपनी कब आएगी? अभी आके पूछिए पूछता अब्दुल अय्यूब अब्दुल गफ्फार, भैया कुरान कहाँ से पढ़ा? तो भी कहेंगे हाफिज साहब से पढ़ा, मुफ्ती साहब से पढ़ा। तवज्जो है, हाफिज साहब से पढ़ा, ये तो मिस्टेक हो गई कि सरकार खत्मी मर्तबा ने इल्म कुरान के लिए, मफहूम कुरान के लिए हाफिज नहीं छोड़े थे, मुहाफिज छोड़े थे। हाफिज नहीं छोड़े थे, मुहाफिज छोड़े थे। अब एक नई बहस शुरू हो गई, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। कलम से पूछ तू बता, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। किरदार से पूछ तू बता, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। तक से पूछ तू बता, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। मगर सुबह कयामत हो जाएगी, पता न चल सकेगा हाफिज कौन, मुहाफिज कौन, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। मगर चंद लम्हों के लिए अपने पाकीज़ा अज़हान को लेकर के जंग सिफ़ीन तक चलो, पता चल जाएगा हाफिज कौन, मुहाफिज कौन, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। अली की तलवार चली, लोगों के सर सावन की घटा की तरह बरसे। पूरा सुनाता आपको, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। अली की तलवार चली, जवानों आपकी जिम्मेदारी है, अली की तलवार चली, लोगों के सर सावन की घटा की तरह बरसे। हर तरफ से आवाज आने लगी, अली पनाह दो, अली पनाह दो, हाय हाय हाय, अली
पनाह दो। तो फिर क्या हुआ? आज समझ में आ गया कि आज तो अजल करीब है, तो कुरान को लिया, नो के नेजा पर पेवस्त करने के बाद का अली देखो हम कुरान वाले, अली देखो हम कुरान वाले, अली देखो हम कुरान वाले। मैं कहूंगा भैया अगर तू साहिब ईमान है, तू मुसलमान है, तो तुझे घबराहट आएगी है। ये तो वो तलवार है जो 70 नस्लों को देख के अली पनाह दो, अली पनाह दो। सबकी जिम्मेदारी बन गई शायद आखिरी जुम्मों, अली पनाह दो। अली की तलवार चली, लोगों के सर सावन की गदा की तरह बरसे, अली पनाह दो। अब तो समझ में आ गया हाफिज कौन, मुहाफिज कौन, हाफिज कौन, मुहाफिज कौन। जो अपनी जान के तहफ्फुज़ के लिए, जो अपनी जिंदगी के लिए, जो अपनी हयात के लिए, जो अपनी सांसों के लिए कुरान को लोग के मेज़ा पर चढ़ा दे, तारीख उसे हाफिज कहती है। तो इसी कुरान को बचाने के लिए खुद नौ के मेज़ा तो रसूल इस्लाम ने हाफिज नहीं छोड़े थे, मुहाफिज छोड़े थे। ये है वो ज़बात मुक़द्दसा, ये है वो मुहाफिज कुरान जिनको फॉलो किया जाए। यही वजह है कि जब ये सादिकीन दरबार में पहुंचे तो अपने खुतबे की धमक से ही बिल्कुल रिजल्ट को बदल दिया। तारीख बताती है, बस एक नतीजा पहुंचाना, आपका पूरा खुतबा नहीं पढ़ना, नतीजे तक पहुंचा दो ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। कौन है सादिक, कौन है सादिका, किस कैरेक्टर को हमको फॉलो करना है। दरबार यजीद छलक रहा है, एक तरफ तख्त है, ताकत है, नशा है, और एक तरफ मेरा सादिक इमाम है जो हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खराबदार तौक। और जैसे इस मंजर को देखा और इमाम सज्जाद सामने, यजीद सामने बैठा, तो एक मर्तबा कहता, हुक्म देता है अपने खतीब से कि मेरे जद के फजाइल पढ़ो, मेरे दादा के, मेरे परदादा के, मेरी माँ के फजाइल पढ़ो। तो वो पढ़ रहा था, इमाम सज्जाद सुन रहे थे, और सुनते सुनते जब वो खामोश हो गया तो मेरे मौला सज्जाद ने कहा कि अगर मुझे इजाजत हो तो इसकी खिताबत सुन ले, मेरा खुतबा सुनो। बात बहुत मजबूत है, मेरा खुतबा सुनो। अब मौला सज्जाद आए, कदम रखा मिंबर पर और बयान करना शुरू करा कि मैं मोहम्मद का बेटा, मैं फातिमा का बेटा, मैं अली का बेटा, मैं मक्के का बेटा, मैं मना का बेटा, मैं सफा का बेटा। यही हमें दिया गया, ताकत हमें दी गई, मनसब हमारे पास, मगर ये कहते कहते शुजाअत हमारे पास। जब इन्होंने इस मंजर को देखा कि ये तो आज तख्ता पलट हो जाएगा, दरबार में तनातुम हो गया, तो एक मरतबा 1 2 3 4 5 6 7 मुअज्जिन मौजूद थे। यजीद ने हुक्म दिया कि अजान को शुरू कर दो। सज्जाद खामोश हो जाएंगे, अजान को शुरू कर दो। सज्जाद खामोश हो जाएंगे, अजान को दिया गया। अल्लाह अकबर, सज्जाद खामोश, अल्लाह अकबर, सज्जाद खामोश। एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सज्जाद खामोश। और एक मरतबा जब मुअज्जिन आगे मंजिल पर पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सज्जाद ने मिंबर में से कदम को रखा, बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखकर कहा कि बाबा आपको फतह मुबारक हो। बाबा आपको फतह मुबारक हो। इसे कहते हैं सादिक, इसे कहते हैं सादिका, इसे कहते हैं कैरेक्टर। आज सज्जाद के खुतबे ने और सज्जाद के खुतबे की धमक ने इस बात को साबित कर दिया कि कल तक जो रिसालत के इनकार कर रहा था, आज वही रिसालत की गवाही दे रहा है। एक सलाम पढ़े मोहम्मद कल तक जो
इनकार कर, कोई शरीयत नहीं आई, कोई नबी नहीं आया, आज उसका दरबार गवाही दे रहा है। सलवात पढ़े और मोहम्मद वाला। तो ये सब, ये मजलिस अदा, ये मातमदारी, आपका रात में जागना, ये अलंबरदारी, इस बात को भी मैं क्लियर करके चलूं कि ये किसी चीज के लालच में नहीं है, खुसूसन जन्नत के लालच में नहीं है। वो और हमारे फिक्र के मुसलमान है, तो इसे पूछो कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत मिल जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत मिल जाएगी। आदम को क्यों माना, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत मिल जाएगी। नूह को क्यों माना, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत मिल जाएगी। तो जो कदम कदम पर जन्नत की तमन्ना करे, तारीख उसे उम्मत मोहम्मद को कहती है। जन्नत जिनकी तमन्ना करे उन्हें आले मोहम्मद। नाम मौत का खौफ है। सलमान फारसी एक मर्तबा जनाब फिजा से कहा, खिताब करके कि फिजा तुम जन्नत में जाओगे। अब मुझे कोई आयत, कोई रिवायत लाकर दिखाओ कि जनाब फिजा ने कहा कि इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह की कलिमात को मुस्तजाब करे। भाई क्योंकि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि लावड़ की मजलिस पढ़ने के बाद और सुबह का ऑफिस करने के बाद, वो भी जरूरी है, आप करबला मोहल्ला जाएंगे, मैं वो इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी बात सुन ले, अब मैं करबला पहुंचा दे, क्योंकि आप मुझे बस जगह से बुलंद जगह भेज रहे हो। आप बस जगह से बुलंद जगह भेज रहे हो, मगर कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौलिक, कोई फतवा ऐसा ला करके दिखाओ कि जैसे ही ईमान के 10 दर्जों में फाइज होने वाले सलमान ने कहा कि फिजा तुम जन्नत में जाओगी, तो फिजा ने कहा आमीन, सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कलिमात को मुस्तजाब करे। मगर जैसे ही ईमान के 10 दर्जों पर फाइज होने वाले सलमान ने कहा कि फिजा तुम जन्नत में जाओगी, फिजा ने कहा खामोश सलमान, जन्नत में जाओगे तुम, मैं तो रहती ही जन्नत में। जो अहले बैत है, जो दामने अहले बैत है, वही जन्नत है। अहले बैत से मोहब्बत का दावा, जन्नत का लालच। जन्नत वो तो आपकी माँ की कदमों के अंदर रखा है। सोचिए, माँ की खिदमत कीजिए, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वही आपकी खैर के लिए अपने हाथों को बुलंद करके रखता है। जन्नत कोई बहुत बड़ी शय नहीं है, ये तो अहले बैत ने पहलवान से बंटवा दी थी। बाहर रात ले जाओ, जन्नत कोई बहुत बड़ी शय नहीं है। अहले बैत के दरवाजे पर आकर जन्नत की भीख, होशियार भिखारी दरवाजा फेंक के भीख मांगता है। अहले बैत के, आप बताइए मुझे संजय चाचा कि कोई BMW वाला रेड लाइट पर रुके और रुकने के बाद कोई ऐसा भिखारी है जो कहेगा 5 रुपए दे दो? क्यों? जैसा दरवाजा वैसी भीख। अहले बैत के दरवाजे पर आकर जन्नत की भीख, ये तो बहनौल से बंटवा दी। मेरा वतन था, मेरे वालिद मोहतरम थे, एक साथ नाक पढ़ते पढ़ते आए, भर दो झोली या मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। अब ना जाने उसने क्या देख लिया, एकदम लफ्जों का इजाफा कर दिया, उस नवासे का सदका अता हो जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली, उस नवासे का सदका अता हो जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। तो मैंने सवाल करा, भैया तेरा लिबास तो कुछ और बता रहा है, तेरे लफ्ज कुछ और बता रहे हैं, इनके नाम पर भी मांग, इनके नाम पर भी मांग, इनके नाम पर भी मांग। मगर मैंने कहा भैया इनके नाम पर भी मांगना, तो उसने पलट कर कहा कि मौलाना मांगना तो बहुत, मगर किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मौलाना मांगा तो बहुत, मगर किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो दुनिया ही से सीख लो, जिनके नाम पर भीख ना मिले, उनके नाम पर अल्लाह जन्नत कैसे दे।
माशाअल्लाह मौलाना नाम रोशन करो जो मौलाना का इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद देखिए साहब, आपकी दुआओं के सामने हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो साइंस के स्टूडेंट रहे, साइंस से जो आशना है वो इस बात को जानता है। एक टर्मिनोलॉजी बहुत साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस लफ्ज का इजाफा, इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है दो चीजों के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। तो यानी अगर कोई चीज दूसरी चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर उसका मयार बढ़ेगा तो दूसरी चीज जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मयार भी बढ़ेगा। तो जुमला कहना चाहते हूँ, दामन अहले बैत, दामन अहले बैत और मारिफत इल्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ज्यादा इनको पहचान सकोगे। सलवात पढ़िए। हम हसनैन को मानते, हम इमाम हुसैन को मानते, तो हमारा कैरेक्टर भी ऐसा होना चाहिए। हमें देखकर पता भी लगना चाहिए कि किसको फॉलो करने वाले। कसम खुदा की, बड़े खुश नसीब है कि आप लोग कि जिनको ऐसा दर मिला। हर किसी को दर नसीब नहीं है, लोग दर बदर हो गए, मगर आपको दर मिला इसका अहले बैत का। तो मारिफत अहले बैत और दामन इल्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इल्म भी होना चाहिए, हमें अपने आप को जस्टिफाई भी करना है दुनिया में भी और आखिरत में भी कि हम किसके मानने वाले हैं। तो ये कहने से कुछ नहीं होता कि अहले बैत हमारे, कुछ नहीं होता। मैं दोबारा लफ्जों को बदल रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर बड़ा पस्ता कामत, उसकी डेवलप ही नहीं, उसकी दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ। कैसे कि हर बड़े से अपना रिश्ता जोड़ता है। ये 100 बीघे वाले मेरे मामू, ये 200 बीघे वाले मेरे चचा, ये जो हाईवे पर प्लॉट आ रहा है ये मेरे मामू। तो बड़ों से रिश्ता जोड़ता है, यही मेंटेलिटी आगे डेवलप हो गई। हसनैन बनन हमने कहा आका ज़ादे, हुसैन बनन हमने कहा आका ज़ादे, अली बनन हमने कहा अली वलीउल्लाह, मोहम्मद बनन हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, शहजादी बनन हमने कहा हमारी आका ज़ादी। तो ये कहने से कुछ नहीं होता अहले बैत हमारे, बल्कि हमारा किरदार ऐसा हो कि अहले बैत कहे ये हमारे, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। हम बोले तो पता लगे कि अली के मानने वाले हैं, हम अज़दारी करें तो पता चले कि ये अली के चाहने वाले हैं। हमारा डिसिप्लिन ऐसा हो कि लोग हमसे मोहब्बत करें। एक सलवात और पढ़े पर मोहम्मद इंशाअल्लाह। फिर कभी आपने मौका दिया तो फिर इंशाअल्लाह इस बात को यही से मैं शुरू करूँगा। बहुत ताख़ीर हो गई, मैंने बहुत वक्त लिया इंशाअल्लाह। सलवात पढ़े तो आज की तारीख और मुहर्रम का ये जमाना इमाम सज्जाद से मंसूब और शहादत की तारीख। मैं बस 2 वादे अपने जवानों से लेना चाहूंगा, बस 2 वादे। और कसम खुदा की, जब मैं मिंबर पे से वादों को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। फजाइल आपने जैसे सुने वैसे सुने, मगर मसाइल में कभी बुखल ना करना। इस वजह से क्योंकि मैं अली की बेटी के एक सवाल से डरता हूँ। कभी भी 2 चीजों में बुखल ना करना। एक, जब हुसैन के मसाइल हो रहे हो तब कभी बुखल से काम न लेना, कंजूसी से काम न लेना। और एक, जब इनका मातम हो रहा हो तब कभी बुखल से काम न लेना। इस वजह से क्योंकि मैं अली की बेटी ज़ैनब के एक सवाल से डरता हूँ, अरे मेरे भैया पर ना मातम करने वाले, तुझे किसने रोका था? हाय मैं तो अपने भैया का मातम न कर सकी कि हाथ बसे कर जा। कभी भी 2 चीजों में बुखल न कीजिएगा। एक, जब हुसैन के मातम हो रहे हो, हुसैन का मातम हो रहा हो, कभी बुखल से काम न लेना। इस वजह से क्योंकि मैं हुसैन की मजलूम बहन ज़ैनब के सवाल से डरता हूँ। एक, जब मसाइब हो रहे हो हमेशा दिल खोल के रोइएगा, साहिबा ने औलाद है आप। इस वजह से क्योंकि मैं हुसैन की मजलूम बेटी सकीना के एक सवाल से डरता हूँ, अरे मेरे बाबा पर ना रोने वाले, तुझे किसने रोका था? आए मैं तो अपने बाबा को यूं ना रो सकी कि जब भी आए बाबा कहकर रोती थी, जालिम तमाचे लगाता था।
भी दो चीजों में बुखल न कीजिएगा, हुसैन के जब मातम हो रहा हो और जब मशायब हो रहे हो, हमेशा दिल खोल के रोइएगा, दिल खोल के पुरसा कीजिएगा। बस चंद जुमले मशायब के यहाँ से आपका बहुत वक्त लिया, मगर कभी भी बुखल न कीजिएगा। कूफे का बाजार है, अली की शेर दिल बेटी है, ज़ैनब जिसका नाम, खुतबा दे रही है कूफे वालों, तुम्हारी हया को क्या हो गया? कूफे वालों, क्या तुमको नहीं पहचान, मुझे नहीं पहचानते? मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी ज़ैनब हूँ, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? हम पानी नहीं मांग रहे, बस एक चादर का सवाल, बस एक चादर का सवाल। तारीख बताती है, कूफे की मस्जिद में, सैन्य मस्जिद में, मौला का एक बूढ़ा साहबी, बड़े तसल्ली से पढ़ूंगा मैं मसाइल, अब्दुल्ला इब्न अफीफ, जो आंख से नाबीना, देख नहीं सकते, पहलू में एक बच्ची है। अब्दुल्ला की आवाज में ज़ैनब की, अब्दुल्ला की कान में ज़ैनब की आवाज आई। अब्दुल्ला ख्वाब पर बैठ गया, चीख मार कर कहा कि बच्ची कयामत हो गई। कि क्या हो गया मेरे बाबा? कि बच्ची कयामत हो गई। मेरा मौला अली बोल रहा है, मेरा मौला अली बोल रहा है, मुझसे मौला ने वादा किया था, अब्दुल्ला कयामत में मुलाकात होगी। अरे कयामत हो गई, मेरा मौला अली बोल रहा है, मुझे इस आवाज के करीब ले चल। नाबीना बाप का दामन थाम कर मासूमा बच्ची आगे बढ़ी, या अली कहती बच्ची आगे बढ़ी। एक मर्तबा बच्ची थमी, एक मर्तबा कहा कि बाबा आप तो ये कह रहे थे, ये बोलने वाला कोई मर्द बोल रहा है। बाबा ये कोई मर्द नहीं बोल रहा, बाबा ये एक औरत बोल रही है, इसके हाथ फंसे गर्दन पे मकना चादर। बाबा ये बोलने वाली कोई मर्द नहीं है, ये तो एक औरत बोल रही है। बाप बेटी इस आवाज के करीब मुझे ले चल, इस आवाज के करीब मुझे ले चल। नाबीना बाप का दामन थाम कर मासूमा बच्ची को आगे बढ़ी। साहिबा ने औलाद है आप समझ सकते हैं इस दर्द को। जैसी बच्ची आगे बढ़ी, बच्ची खाक पर गिर गई कि बाबा मैं आगे ना बढ़ूंगी मेरे बाबा, बाबा मैं आगे ना बढ़ूंगी मेरे बाबा। कि बच्ची तूने अब क्या देख लिया? कि बाबा वो काफिला है, उस काफिले में एक मेरे सिर की बच्ची है मेरे बाबा, उसके कानों से खून बह रहा है बाबा। करबला की तरफ रुक कर कह रही है, आ जाओ मेरे बाबा, आ जाओ मेरे बाबा। अल्लाह किसी बंदे ने फरमाया सिवाय तुम्हें मजलूम करबला। एक मर्तबा बच्ची आगे बढ़ी, बच्ची अपनी हिम्मतों को संभाल, मुझे इस आवाज के करीब ले चल। बच्ची ने अपनी हिम्मतों को समेटा, या अली कहती बच्ची आगे बढ़ी, मासूमा बच्ची आगे बढ़ी, खाक पर गिरी, बाप के पहलू में आ गई कि बाबा मैं आगे ना जाऊंगी मेरे बाबा। अब बच्ची अब क्या देख लिया कि बाबा वहां दूर रोका पर बहुत सारे सर है मेरे बाबा, मगर बाबा एक छोटा सा सर, और उसकी बातों में दूध लगा है। अब्दुल्ला खाक पर बैठ गया, अरे किसी आगे वाले वाला मौका नेज़ा पर आ गया, ये किसी को गुजर गई। बच्ची इस आवाज के करीब मुझे ले चल। बच्ची ने अपनी हिम्मतों को समेटा, नाबीना बाप का दामन थाम कर मासूमा बच्ची आगे बढ़ी, करीब आई। एक मर्तबा आवाज आई, चाचा अब्दुल्ला आप पर हमारा सलाम हो। मैं पहुंच गया अपने चौथे इमाम पर, खून रोया है मेरा इमाम, आप लोग पुरसा देंगे। चाचा अब्दुल्ला आप पर हमारा सलाम हो। अब्दुल्ला खाक पर बैठ गया, अरे ये भी अली का लहजा, ये भी अली की आवाज, ए बोलने वाले बता दे तू कौन? का चाचा अब्दुल्ला आपने भी ना पहचाना, अरे मैं आपका ज़ैनुल आबिदीन, वो पानी मांगने वाली सकीना, वो बेबदलो चावल ज़ैनब, दारुल हमारा पे चाचा मुस्लिम। घर उजड़ गया, कोई पुरसाने और नहीं, घर उजड़ गया। चाचा अब्दुल्ला मैं आपका ज़ैनुल आबिदीन। मातम हुसैन।